Dear brothers and sisters in the Lord, प्रभु में प्रिय भाई और बहनों, today let us meditate Isaiah 58:9. यशायाह 58 और 9 वचन पर हम अध्ययन करेंगे। Then shall thou call, and the Lord shall answer. तब तू पुकारेगा और यहोवा उत्तर देगा। This verse promises a direct and responsive relationship with God when His people align their lives with His principles. ये वचन जब लोग परमेश्वर के नियम के अनुसार चलेंगे तो परमेश्वर ये भरोसा देते हैं, जब वो प्रार्थना करे तो तुरंत ही उत्तर देगा। And He want to maintain that relationship. और ये जो रिश्ता है, ये संबंध को वो कायम रखेगा। His principles of justice and compassion are very important. और उसके जो नियम है न्याय के बारे में और तरस खाने में, ये सच्चाई है। So this verse highlights the God's readiness to respond to His people. ये वचन ये बताती है परमेश्वर ने अपने लोग जब उसको पुकारेंगे, प्रार्थना करेंगे, वो तो तुरंत ही उनका जवाब देगा। And He is telling that they can experience my presence. और फिर मेरी उपस्थिति का वो अनुभव लेंगे। So this verse is a continuation of the blessings that flow from living a life aligned with God's will. अब ये वचन परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जब चलते हैं, उसके अनुसार जीवन जीते हैं, तो जो आशीष देते हैं, इसका और भी आगे बढ़ाने वाली बात When है। God's people call on Him, जब परमेश्वर के लोग उसको पुकारेंगे He promises to answer with these assuring words. और ये जो निश्चय देने वाली बातों के साथ वो उनको उत्तर देगा। What God says? यह प्रभु ने क्या कहा? Here I am. मैं यहाँ पर हूँ। Oh, this reflects an intimate and close relationship. ये उसके साथ कितनी नजदीकी रिश्ते के बारे में बताते हैं। Oh, that speaks of God's presence is felt and His guidance is clear. परमेश्वर की उपस्थिति और उसका अगुवाई यहाँ पर हमको साफ दर्शाती है। However, this verse also includes a condition. और फिर इस वचन में एक शर्त भी है। What is that? क्या शर्त है? The removal of oppression. You should not oppress anybody. आप किसी को सताना नहीं, उसको छोड़ देना There should चाहिए। not be any malicious talk or unjust actions in your life. और आपके जीवन में उनके बारे में कोई बुरी बातें, गलत बातें नहीं करना है। Who is calling His people to a life of integrity? God is calling, life of integrity and righteousness. और जो लोग धार्मिकता के जीवन को जीते हैं, ऐसे लोगों के लिए वो बुलाते हैं। God is asking His people to live like that. और फिर परमेश्वर ने इस प्रकार से आप जीवन जीना कहते हैं। You have to lead a life of integrity and righteousness. आप फिर धार्मिकता के जीवन को जीना है, आपका जीवन बिल्कुल साफ होना चाहिए। So true worship involves not only seeking God in prayer, और सच्ची आराधना में क्या है? हम ना केवल प्रार्थना करना ही है, but also living in ways that reflect His character. और फिर उसके गुण को बताने वाली जीवन हम में रहना चाहिए। And particularly how we are treating other people. और विशेष हम दूसरे लोगों के साथ कैसे हम बर्ताव करते That's हैं। why whenever you do or talk something to other people, इसलिए जब कभी आप दूसरों के साथ बात करते हैं, if God is there, if Jesus is there, how we'll talk, how we will do, you think of it and you do like that. यदि परमेश्वर वहाँ पर मौजूद रहते हैं तो आप कैसे बात करते हैं, कैसे करते हैं, ये सोचना चाहिए। So during Isaiah's time, the people of Israel were crying out to God. तो यशायाह के समय में लोग यहोवा के पुकार उठते थे। They are frustrated that their fasting and prayer seemed to go unanswered. और हम लोग सोचते थे कि हम उपवास से जो प्रार्थना भी करते हैं वो बेकार हो गया। So their religious rituals were disconnected from their daily lives. तो उनके जो आचार व्यवहार है, ये हर दिन की इतना भी करने पर परमेश्वर के साथ उनका संबंध टूट गया है। They are not following all those things. और ये सब वो लोग वो नहीं कर रहे वो लोग। And their lives were full of injustice and exploitation. और उनके जीवन में पूरा अन्याय भरा हुआ है। This verse reflects God's response to their situation. तो ये जो वचन है, जो परमेश्वर के साथ उनका कैसे वो लोग बर्ताव कर रहे हैं उस So पर। He explains that His blessings and presence are tied to their willingness to repent and pursue justice. और जो उसके आशीष है, जैसे वो लोग परमेश्वर के मार्ग में चलते हैं, उसके अनुसार चलते हैं, तभी वो उनको आशीष देगा। When they remove oppression and act with integrity, जब वो लोग उनका जीवन, suppose if they stop oppression यदि वो लोग लोगों के साथ जो बुरे काम करना उसको छोड़ देंगे, and when they live with integrity, और जब वो भरोसे के साथ जीवन जीते then हैं, their relationship with God will be restored. तो जब परमेश्वर के साथ इनका जो संबंध है फिर पुनः स्थापित हो जाएगा। So that is a mutual, a reciprocal relationship God wants to establish. तो ये इस प्रकार की जो संबंध है परमेश्वर ने स्थापित करना चाहते Then हैं। God is ready to answer and help. मतलब परमेश्वर ने उनको सहायता करने और उनको उत्तर देने के लिए तैयार होते हैं। But He calls His people to turn from sin and align, join their actions with His will. लेकिन लोगों को अपने पाप को छोड़कर उस पर
उसकी और पलटना है और उसके मार्ग के अनुसार वो चलना है। And this verse also underscores the importance of repentance और ये वचन पश्चाताप की महत्वता को भी बताती है and also how we have to lead a righteous living. और हम कैसे धार्मिकता के जीवन को जीना है। So God's promises are not just about individual spiritual experiences, but about creating communities that reflect His justice. Is not only for individuals, but also we have, as a community, we have to show forth His justice, mercy, and truth. For such people, these promises. परमेश्वर के वायदे ना केवल व्यक्तिगत के लिए, लेकिन जो परमेश्वर के धार्मिकता के बारे में, उसके रास्ते के बारे में, भलाई के रास्ते बताते उनके लिए भी है ये। So this verse, when we see, there is a condition is there, and then the promise is अब there. हम ये वचन में देखते हैं वहाँ पर शर्तें हैं, फिर तो उसका वायदे भी है। The first part of this promise emphasizes God's readiness to respond. और ये वायदा जो पहले भाग में क्या हुआ है, परमेश्वर ने उनको उत्तर देने के लिए वो तो तैयार है। Verse 9, then you will call and the Lord will answer. नौ वचन क्या रहेगा, तब तू पुकारेगा और यहोवा उत्तर देगा। This is followed by a condition. ये इसके लिए क्या है, एक शर्त है। Already, as I told you, you have to remove oppression, malicious talk, and blame shifting. जैसे कि मैं पहले बताया है, आपको दूसरों को सताना छोड़ना है, आप दूसरों के बारे में मन में कुछ विरोध नहीं रखना, ये सब चीजें छोड़ना है। And directly God is telling, here I am. अब सीधे यहोवा ने क्या करता है, मैं यहाँ हूँ। That is emphasizing God's personal and immediate presence. क्या बोलता है यहाँ पर, परमेश्वर व्यक्तिगत रूप से उसकी उपस्थिति यहाँ पर हमारे बीच रखा है। Not only that, और ना केवल the उतना। imagery of doing away with the yoke of oppression ties with this verse. और इस वचन के साथ क्या लगा हुआ है, ये जो उनको सताने वाले जो जुआ को निकाल देना। So here when we see other relevant verses are also there in the Bible. और भी बाइबल में और दूसरे वचन भी लिखा है। In Psalm 34:17, भजन संहिता 34 का 17 वचन में, Proverbs 15:29. नीति वचन 15 और 29 वचन। So in Matthew 7:7 and 8, मत्ती समाचार 7 और 7-8 वचन and में, James 4:3, याकूब की पत्री 4 अध्याय 3 many वचन। verses are there which illustrates the same truth. और इसी प्रकार से यही सच्चाई को बताने वाले और भी वचन है। So what does this verse means to today's Christian? तो ये जो वचन है आज के मसीह लोगों के लिए ये क्या बताते How हैं? can we apply this verse in our own lives, you and me? इस वचन को हमारे जीवन में कैसे अपना सकते So हैं? for Christians today, this is a reminder of the connection between our faith and our actions. आज के मसीही के लिए ये हमारा विश्वास और हमारे काम उसके साथ कैसे लगाव है, ये बात को याद करती है। It challenges us to consider whether our prayers are accompanied by lives that reflect God's justice and compassion. जो हम प्रार्थना करते हैं, क्या हमारे जीवन में जो परमेश्वर दया करुणा दिखाते हैं, क्या उस प्रकार का जीवन हम में है? And how are our lives in our workplaces and communities? जहाँ पर हम काम करते हैं, जहाँ पर हम निवास करते हैं, हमारा जीवन क्या है, कैसी गवाही है हमारी, How are our relationships with others? और दूसरों के साथ हमारा संबंध कैसा है? So this verse also offers an encouragement. तो ये वचन हमको थोड़ा प्रोत्साहन भी देती है। When we live according to the will of God, तो हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलेंगे we can experience His presence, और उसकी उपस्थिति का अनुभव लेंगे, and also we can experience His guidance in a powerful way. और हमारे जीवन में उसकी अगुवाई को और भी शक्तिशाली रीति में हम अनुभव कर Then सकते हैं। God is ready to answer our cries. जब परमेश्वर ने हमारे पुकार को सुनेगा, He wanted to respond to our prayers. जब हम प्रार्थना करते हैं उत्तर देना चाहता है, I want to answer your prayers. और मैं तुम्हारे प्रार्थनाओं का उत्तर देना चाहता हूँ। That is, He wants to be very close to us. इसका मतलब वो हमारे करीब रहना चाहता है, He is not distant or indifferent, but deeply involved in our lives. और वो कहीं दूर रहने वाला, अलग रहने वाला नहीं, लेकिन हमारे जीवन में वो शामिल होगा। He is ready to respond to our call immediately. और जब हम पुकारते हैं तो तुरंत ही उत्तर देना चाहता है। Many times we will not get answers because our life is not meeting with our prayers. कई बार हमारी प्रार्थना का उत्तर नहीं मिलने का कारण, जैसे हम प्रार्थना करते हैं वैसे हमारा जीवन नहीं रहता है। We will be so proud. हम घमंडी होते We हैं will be oppressing other people. और लोगों को सताते हैं And we will be talking all malicious words. और दूसरों के बारे में बहुत गलत बातें करते And हैं, we will be praying. फिर प्रार्थना भी करते हैं। God is telling, I cannot answer the prayers of such people. तो प्रभु परमेश्वर कहता है, ऐसे लोगों की प्रार्थना का उत्तर नहीं दूंगा, Set right your ways. और आपके मार्ग को सुधारे Ask for forgiveness. और क्षमा के लिए आप And मांगिए, pray. फिर प्रार्थना कीजिए, Then I will answer. अब मैं उत्तर दूंगा। God also, Lord Jesus Christ also taught the same प्रभु principles. यीशु मसीह यही नियम को सिखाए है, And in His life also, He loved everybody. और उसके जीवन में देखते हैं हम हर एक से प्रेम किया So उसने। you and I also. आप और मैं भी To have a deeper relationship with God. और परमेश्वर के साथ
साथ गहरा संबंध रखना First of चाहते all, हैं, we have to examine our own life. पहले हमारे जीवन को परखना चाहिए। Anything which is not, in line with what he said, we have to remove. जो कुछ परमेश्वर ने कहते हैं उसके वचन के अनुसार नहीं है तो पहले उसको हमारे जीवन से निकाल देना चाहिए, And then he will answer our prayers. तब हमारे प्रार्थनाओं का उत्तर देगा। So may God help us to live like that. तो इस प्रकार का जीवन जीने में परमेश्वर हमारी सहायता करे। Let us pray. आइए हम प्रार्थना करेंगे। Loving Heavenly Father, हमारे प्रेमी स्वर्गीय our पिता, gracious God, दयालु परमेश्वर, Lord, we thank you for thy word. प्रभु तेरे वचन के लिए धन्यवाद। When we lead, O Lord, lives of integrity and, O Lord, without any malice. प्रभु जब हम अच्छा जीवन जीते हैं, हमारे जीवन में कोई बुराई नहीं होती है, Lord, you are so close. You want to maintain a very personal relationship with us. आप प्रभु हमसे व्यक्तिगत जीवन संबंध रखना चाहते हैं। You are telling, here I am. आपने कहा कि मैं यहाँ हूँ, That is just beside us. तो ये बिल्कुल हमारे पास में है। And when we pray, जब हम प्रार्थना करते हैं answer is sure. तो निश्चय वो जवाब मिलेगा। So help us to be like that. तो इस प्रकार जीने में सहायता In कीजिए। Jesus' precious name we pray. यीशु मसीह के बहुमूल्य नाम से प्रार्थना को चढ़ाते सुने ग्रहण कीजिए। Amen. आमीन। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। और भी अधिक आत्मिक संदेशों के लिए जॉन विक्टर हिंदी मैसेजेस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।